Good morning, my dear students. In previous lecture, we have learned about clay work, where we have saw its fourth and fifth topic, that was making fruit shapes and making a necklace of your choice. So, in making fruit shapes, we have took a different colored clay, then we have rolled that clay in a small balls, then we have prepared different fruits and vegetable of that clay. Then we have detailed it with a green color clay, that we have made a leaf of that green color clay, and we have made banana, mango and brinjal. So here we have done about making fruits shapes. Then in the fifth topic, that was fifth part, we have done or we have made a necklace of our choice, where we have used different color clay. So there we have made three types of necklace, where we have decorated with our own choice, we have used our own ideas and we have prepared those three necklace. So these two topic we have studied in our previous lecture, and that the topic was in a clay work. So students, to recap how we have prepared this both topic, I will show you the video again. So just go through that video so that you can recap how we have prepared this both the topic. So here is the video.
I hope you have understood by watching the video again. So now student, let's move further. In today's lecture, we are going to see the singing topic, where we are going to see the two topics, that is rhymes and chorus song. So student, are you ready to learn this new topic? Very good. So without wasting our time, let's start with the new topic, that is rhymes, and then we will see the next topic, that is chorus song. So first we will see what is mean by rhymes. Rhymes यानी क्या? Rhymes यानी जहाँ हमें पीछे के वर्ड्स राइमिंग्स फॉर्म में मिलते हैं. जैसे यहाँ पे दिया है मेरी हरी यानी ये दो राइम्स वर्ड है, राइमिंग वर्ड है. वाटरमेलन, स्वीट लेमन. सो ये राइम्स है. सो ये जो फर्स्ट पोएम है उसमें हम राइम्स देखने वाले. और जो सेकेंड वन है वो है कोरस सॉन्ग. कोरस सॉन्ग यानी जहाँ पे सॉन्ग है उसका जो कोरस है वो हमें 2 बार रिपीट करना है, उसे हम कोरस सॉन्ग कहते हैं. सो फर्स्ट वी विल सी राइम्स, देन वी विल सी कोरस. सो काइंडली ओपन योर EVS कंबाइंड बुक, पेज नंबर 89. वी विल स्टार्ट विथ द राइम्स. Cats and rats were buddies together. Cats and rats were buddies together. They wished their friendship last forever. They wished this friendship last forever. The cat and rat went for the walk. The cat and rat went for the walk. With loads of fresh fruits they came back. With loads of fresh fruits they came back. Sparrow and squirrel came one behind the other. Sparrow and squirrel came one behind the other. All other joined them and it was a great together. All other joined them and it was a great together. Berries, orange, apples and sweet lemon. Berries, orange, apples and sweet lemons. All choose to eat the big watermelon. All choose to eat the big watermelon. Fruits were enjoyed and all were so merrily. Fruits were enjoyed and all were so merrily. The party was over, so that rushed home in a hurry. The party was over, so they rushed home in a hurry. So in this rhyme they have told that there was a cat and rat. They were best buddies. Buddies यानी best friends. Their friendship was forever. Means उनका जो फ्रेंडशिप था वो बेस्ट था. जैसे हम लोगों का भी कोई फ्रेंड रहता है, बेस्ट फ्रेंड, वैसे ही कैट्स एंड रैट ये दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड थे. फिर क्या हुआ? द कैट एंड रैट वेंट फॉर अ वॉक. एक दिन कैट और रैट वॉक के लिए गए. किधर गए? दे वेंट फॉर अ वॉक. विथ लोड्स ऑफ फ्रेश फ्रूट दे केम बैक. जब ये दोनों कैट और रैट वॉक के लिए गए, वॉक से जब घर आते समय वो दोनों ने बहुत सारा फ्रूट्स लेके आए. क्या लेके आए? बहुत सारा फ्रूट्स लेके आए. Sparrow and squirrel came one behind the other. जब कैट और रैट बहुत सारा फ्रूट लेके आए, उनके पीछे कौन आया? स्पैरो एंड स्क्विरल भी आए. स्पैरो और स्क्विरल ने देखा कि रैट एंड कैट दोनों बहुत सारा फ्रूट्स लेके आ रहे, तो उनके पीछे पीछे स्पैरो और स्क्विरल भी आ गई. ऑल अदर जॉइन देम एंड इट वॉज अ ग्रेट टुगेदर. और जब स्पैरो और स्क्विरल आए, उनके पीछे दूसरे एनिमल्स और बर्ड्स थे वो भी आ गई. बेरीज, ऑरेंज, एप्पल एंड स्वीट लेमन ऑल चूज टू ईट द बिग वाटरमेलन. तो उन्होंने फ्रूट्स में कौन से फ्रूट्स लाए? उन्होंने बेरीज लाए, ऑरेंज लाए, एप्पल, स्वीट लेमन, ग्रेप्स, वाटरमेलन. तो उन्होंने ढेर सारे ये सब फ्रूट्स लाए और सबको वाटरमेलन ही खाना था. पर इतने सारे फ्रूट्स थे पर सबको कौन सा फ्रूट खाना था? अ बिग वाटरमेलन. वाटरमेलन बड़ा रहता है गोल शेप में. यस, तो सबको वाटरमेलन ही खाना था. फ्रूट्स वर एंजॉयड एंड ऑल वर सो मेरीली. तो यहाँ पे सब जो बर्ड्स और एनिमल्स आए थे वो सब एंजॉय कर रहे थे. कैसे? तो वो सब जितने भी फ्रूट्स लाए थे कैट और रैट ने, वो सब वो फ्रूट्स खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे. द पार्टी वॉज ओवर, सो दे रश्ड होम इन अ हरी. जब पार्टी खत्म हुई, ये सब फ्रूट्स खाने के बाद उनका पार्टी जो था वो खत्म हुआ. पार्टी खत्म होने के बाद सब घर जाने के लिए
दौड़ने लगे, वो घर जाने के लिए दौड़ने लगे। सो दे वेंट रश्ड होम इन अ हरी। सो यहाँ पे क्या था, कैट और रैट ने उनके बहुत कड़क फ्रेंडशिप थी, उनकी बहुत बेस्ट फ्रेंडशिप थी, ऑसम फ्रेंडशिप थी। मीन्स ऐसी फ्रेंडशिप थी कि जो लास्ट फॉर एवर रहेगी। और उसमें कैट और रैट ने जब एक दिन सोचा कि हम वॉक के लिए जाएंगे, जब वो वॉक के लिए गए, वॉक से आते समय उन्होंने ढेर सारी फ्रूट्स लाई। फ्रूट्स लाने के बाद उनको किसने देखा, उनको स्पैरो और स्क्यूरल ने देखा, तो वो दोनों उनके पीछा करने लगे। और ऐसे ही सब एनिमल्स और बर्ड्स देखते देखते उनका पीछा करने लगे। फिर उन्होंने फ्रूट्स में कौन से फ्रूट्स लाए थे, बेरीज, ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स, स्वीट लेमन, वाटरमेलन। और फिर वो ये सब फ्रूट्स एक साथ बैठ के खाने लगे। मीन्स यानी वो पार्टी को एंजॉय करने लगे। और पार्टी खत्म होने के बाद सब घर पे गए। सो दिस वॉज द राइम। सो आई विल रिपीट दिस राइम अगेन. You will also read this rhyme at your home. So I will repeat it one more time for you. Cats and rats were buried together. They wished the friendship last forever. The cat and rat went for a walk with loads of fruits, fresh fruits. They came back. Sparrow and squirrel came one behind the other. All the other joined them, and it was a great together. Berries, orange, apple, and sweet lemon all chose to eat the big watermelon. Fruits were enjoyed and all were so merrily. The party was over, so they rushed home in a hurry. So आपको ये जो राइम है आपके घर पे आपको रीड करनी है. Okay, now we will start with the second one, that is chorus song. First I will read it, then I will explain you. Each one plant one, each one plant one, to make our planet green, to make our planet green. Let's build every nation, full stop soil erosion. Happy shall we be to see the green city. Manage all the garbage, manage all the garbage to make our planet clean. To make our planet clean. One bin from the waste, another from the dry waste. Happy shall we be to see a clean city. तो ये जो कोरस है इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें एनवायरनमेंट के बारे में बोला है कि हमें हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रखना चाहिए. जो भी गार्बेज, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो हमें डस्टबिन में डालना चाहिए. जो वेट गार्बेज है वो वेट डस्टबिन में डालना चाहिए. और जो ड्राई गार्बेज है वो ड्राई डस्टबिन में डालना चाहिए. और हमें प्लांट्स को कट नहीं करना चाहिए, हमें प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए. सो ये जो कोरस है इसमें हमें एनवायरनमेंट के बारे में बताया हुआ है. अभी मैं एक एक कोरस आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ईच वन प्लांट वन, ईच वन प्लांट वन. तो यहाँ पे बोला कि हर एक बच्चे ने एक एक प्लांट लगाना ही चाहिए. अगर हर एक बच्चा एक एक पौधा लगाएगा, फिर वो अपने बर्थडे के दिन लगा सकता है या कोई ओकेशन हो, तभी अगर हर एक बच्चा, हर एक इंसान पौधा लगाएगा तो हमारा जो प्लेनेट है, हमारा जो पृथ्वी है वो हरी भरी हो जाएगी. हर जगह हरियाली फैलेगी क्योंकि हर एक जन पौधे लगा रहा है, यानी हम उतना पोल्यूशन कम कर रहे हैं. लेट्स बिल्ड एवरी नेशन, फुल स्टॉप सॉइल इरोजन. लेट्स बिल्ड एवरी नेशन यानी अगर हम पौधे लगाएंगे तो हम सब एक साथ आएंगे, हमारे नेशन को बिल्ड करेंगे. अभी आप देख रहे होंगे हर जगह पे पौधे को कट किया जा रहा है और उसकी जगह पे बिल्डिंग्स बना रहे, जो गलत है. हमें क्या करना है, हमें पौधे को कट नहीं करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं. अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो सॉइल इरोजन नहीं होगा. सॉइल इरोजन यानी क्या, जब भी तेज़ हवा आती है तो जो मिट्टी है वो हवा में उड़ के जाती है. अगर पौधे रहेंगे तो वो पौधे मिट्टी को अपने रूट से पकड़ के रखेंगे, यानी मिट्टी उड़ नहीं जाएगी. तो यहाँ पे सॉइल इरोजन का भी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा. इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं ताकि सॉइल इरोजन ना हो. हैप्पी शैल वी बी टू सी द ग्रीन सिटी. अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम पौधे लगाएंगे, हमारे प्लैनेट को बचाएंगे, पोल्यूशन नहीं करेंगे, कचरा नहीं फेंकेंगे, तो हमारा जो प्लैनेट है वो ग्रीनरी यानी स्वच्छ रहेगा.
नीट एंड क्लीन रहेगा, और वो देखने के बाद हमें प्राउड फील होगा, यस हमने हमारे नेशन के लिए, हमने हमारे पृथ्वी के लिए कुछ तो किया है, वो देख के हम हैप्पी हो जाएंगे। मैनेज ऑल द गार्बेज, मैनेज ऑल द गार्बेज, मैनेज ऑल द गार्बेज यानी क्या, तो हमें जब हम कोई भी कचरा फेंक रहे हो तो हमें ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, जो भी कचरा हम फेंक रहे हैं वो हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए। किधर फेंकना चाहिए? डस्टबिन में। वो कचरा हमें बाहर नहीं फेंकना चाहिए। अगर हम बाहर फेंकेंगे, आज एक जन ने बाहर कचरा फेंका, वैसे ही देख के दूसरे जन भी बाहर फेंक, अगर बाहर कचरा फेंकेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, हम हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले। इसलिए हमें देखना है कि हमें जो कचरा हम फेंक रहे हैं वो हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए, हमें बाहर नहीं फेंकना चाहिए। टू मेक अ प्लेनेट क्लीन, अगर हम कचरा डस्टबिन में डालेंगे, हम बाहर नहीं फेंकेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा जो प्लेनेट है वो क्लीन रहेगा। अगर हमारा प्लेनेट क्लीन रहेगा तो हम भी सेफ रहेंगे। 1 bin फॉर द वेस्ट वेट, अनदर फॉर द ड्राई वेस्ट। अभी 1 bin फॉर द वेट वेस्ट यानी क्या? बिन का मतलब डस्टबिन, तो 2 डस्टबिन रखने चाहिए। आपको पिक्चर्स दिख रहा है, एक डस्टबिन ग्रीन कलर का है और सेकेंड डस्टबिन ब्लू कलर का है। सो उसमें से एक डस्टबिन जो रहता है वो वेट वेस्ट के लिए। वेट यानी क्या? वेट यानी जो कचरा वेट है वो वेट वेस्ट में डालते हैं, और ड्राई यानी जो सूखा कचरा है वो हम जो ड्राई वेस्ट है वो उसमें डालते हैं। यानी वो आसान पड़ेगा जब कचरा सेग्रीगेट करते, सेपरेट करते, तो वो जो कचरा सेपरेट करने वाले के लिए जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनको आसानी पड़ने के लिए हो जाएगा, ताकि उनको जब सेपरेट करते समय उनको मुश्किल नहीं आने चाहिए। जब ड्राई वेस्ट है तो वो ड्राई वेस्ट अलग डस्टबिन में, और जो वेट वेस्ट है वो वेट वेस्ट अलग डस्टबिन में होना चाहिए। हैप्पी शैल वी बी टू सी अ क्लीन सिटी, और ये देख के हमें खुशी महसूस होगी, ताकि हम कुछ हमारे एनवायरनमेंट के लिए कुछ फ़ायदे का काम कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट का हम ख्याल रख रहे हैं। कैसे ख्याल रख रहे हैं? तो हम कचरा जो है वो डस्टबिन में डाल रहे हैं, तो यहाँ से हम एनवायरनमेंट की मदद कर रहे हैं। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा और हमें कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। So this was the about chorus song. So I will repeat this chorus again. Just listen to it, then you have to repeat it. Each one plants one, each one plants one, to make our planet green. Let's build every nation, full stop soil erosion. Happy shall we be to see the green city. Each one plant one, each one plant one, to make our planet green. Manage all the garbage, manage all the garbage, to make our planet clean. 1 bin for the waste, another for the dry waste. Happy shall we be to see a clean city. Manage all the garbage, manage all the garbage, to make our planet clean. Now मैं भी रिपीट करने वाली हूँ, आप भी अपने घर में बैठ के मेरे पीछे रिपीट करने वाली। सो लेट्स स्टार्ट। ईच वन प्लांट वन, ईच वन प्लांट वन, टू मेक आवर प्लैनेट ग्रीन। लेट्स बिल्ड एवरी नेशन, फुल स्टॉप सॉइल इरोजन। हैप्पी शैल वी बी टू सी द ग्रीन सिटी। Each one plant one, each one plant one, to make our planet green. Manage all the garbage, manage all the garbage, to make our planet clean. 1 bin for the waste, another for the dry waste. Happy shall we be to see a clean city. Manage all the garbage, manage all the garbage, to make our planet clean. Okay, so student, today we have saw about rhymes and chorus. Now student, let us recap
what we have learned in today's lecture. So in today's lecture we have saw singing part where we have saw rhymes and chorus. So in rhymes we have saw about cat and rat. They were best friend. They were buddy. Best friend means buddies. One day cat and rat went for the walk. From there they brought a various varieties of fresh fruits. Then sparrow and squirrel saw cat and rat. So they came behind them. Then other animals and birds also start joining them. They brought fruits like berries, orange, apple, sweet lemon, grapes, watermelon. They started their party. They enjoyed the party. They started their fruit party. After enjoying their fruit party, they wind up their party and rushedly went home. Hurriedly went home. Then in chorus song we have saw that we should plant a tree. Everyone should plant each tree so that our planet will be green. Then we should prevent plant. We should not cut trees, because if we will cut trees then we will face soil erosion problem. So we should plant more and more tree so that we will be happy by seeing our environment green and clean. We should throw all the garbage in a dustbin. So there are two types of dustbin, wet dustbin and dry dustbin. So we should throw garbage in that dustbin. If we will throw garbage in the dustbin, automatically our planet will get clean. So this we have saw in today's lecture. Now students, it's a homework time. अभी आपका homework है. So the homework is you have to read this rhymes and chorus song 2 टाइम. तो आपको ये जो आज 2 सिंगिंग मैंने सिखाया है ये आपको 2 टाइम रीड करना है. ये आपका होमवर्क है. आपको ये जो राइम्स एंड कोरस सॉन्ग मैंने सिखाया है ये आपको घर पे 2 टाइम्स रीड करना है. तो मैं फिर से एक बार रीड करके दिखा रही हूँ. आपको ये घर पे 2 टाइम रीड करना है. ये आपका होमवर्क रहेगा. सो द राइम्स. कैट एंड रैट्स वर बर्डी टुगेदर. दे विश दिस फ्रेंडशिप लास्ट फॉर एवर. द कैट एंड रैट वेंट फॉर अ वॉक with loads of fresh fruits. They came back. Sparrow and the squirrel came one behind the other. All other joined them and it was a great together. Berries, orange, apple and sweet lemon all chose to eat the big watermelon. Fruit were enjoyed and all were so merry. The party was over, so they rushed home in a hurry. Okay, chorus song. Each one plant one to make our planet green. Let's build every nation, full stop soil erosion. Happy shall we be to see the green city. Manage all the garbage to make our planet green. One bin of the wet waste, another for the dry waste. Happy shall we be to see a clean city. So you have to do this homework. Homework is you have to read this 2 singing, that is rhyme and chorus song 2 time at your home. So I hope you will do it. So students, thank you.